Hello, everyone. So today we are starting our question number 37, which is something different from yesterday question. So yesterday simply in question they have mentioned as prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. So hope that was understood to everyone. Anybody is having any confusion in making simple revaluation account, simple partners capital account and simple balance sheet? No, ma'am, clear. It's clear? Okay, good. So now, today we are doing question number 37. So in that question, see beta, first I am reading the question and telling you what changes were given comparing to yesterday question. So according to that, something new we have to do, so that no confusion will be there why we are doing in this way today's question. And as we are doing 37 same as 38, so that I will not be helping you, that you have to try by yourself. Okay, so question number 37, PQR partners 543 and they have given us balance sheet. Now in adjustment they have given us new ratio 432. For this purpose, following revaluations were made, means following changes were made in liabilities and assets. Furniture is to be taken 80%, stock, plant and machinery, provision. So these all adjustments are used for making revaluation account. But after that, see, next para they have mentioned partners agreed that altered value are not to be recorded in books of account. Mark it this line as an important line. इसका मतलब क्या है? Partners are agree altered value means new value, उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है. Neither they do not want to distribute journal reserve, ना ही उनको journal reserve बांटना है पार्टनर्स को. तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आज समझा रही हूँ. तो पहले पहचान समझ में हो गई, आइडेंटिटी क्लियर हो गई. When this type of sentence is given, then what we have to do, and no sentence is given, so simple as yesterday we have done, same way we have to do. So differentiation is clear between both the questions. Yes, ma'am. Okay, so now Yes, ma'am. first work we have to calculate old ratio and new ratio is given. We have to calculate sacrificing and gaining ratio. Calculate it and tell me fast. That's your work. Old ratio is given 543 and new ratio is given 432. Calculate sacrificing and gaining and tell me who is sacrificing, who is gaining. Partner name is P, Q and R. Who is sacrificing and who is gaining, beta? P is gaining and R is sacrificing. That is only coming. क्या आया बेटा? यही आया sacrificing और gaining सबका. Yes, ma'am. 1 by 36 I have made it small. Yes. Okay. After that, now second step we have to make revaluation account. Goodwill adjustment तो दी नहीं है, so we are making now revaluation. What is the rule of revaluation? Remembering or forgot? What is the rule? Debit what is coming? All expenses. And credit? Income and gains. Okay, good. So now they are saying in adjustment furniture is to be taken at 80%. मतलब फर्नीचर की वैल्यू 80% हो गई. तो फर्नीचर देखो आपको बैलेंस शीट में दिया है 60,000. आज वो कह रहे हैं 80% हो गई, तो 60,000 का 80% मतलब 48,000 हो गई. तो न्यू वैल्यू है 48,000, ओल्ड वैल्यू है 60,000. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ?
Loss. कितने का? 60 minus 48, 12,000. तो फर्नीचर we have written debit side 12,000. Clear first adjustment? आ गया सबको समझ में? Yes, ma'am. स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है. एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया है 20% से. तो सबसे पहले तो एप्रिशिएट हुआ है, दैट मीन्स दिस साइड स्टॉक की वैल्यू 3 लाख है, 20% से बढ़ गया तो 3 लाख का 20% 60,000 यही आएगा. क्लियर? देन नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4 लाख हो गई है, जबकि ऊपर देखो बैलेंस शीट में 4,20,000 है. तो बताओ बड़ी की घटी? Decrease. डिक्रीज. सो प्लांट एंड मशीन 20,000 विल बी कमिंग डेबिट साइड. क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. डेटर्स पे डाउटफुल है, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस. Loss. लॉस है तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में. प्रोविजन ऑन डेटर्स 10,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं? लाइबिलिटी होता है कि असेट होता है? देखो लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग दिया ही है. वो कह रहे हैं वो इंक्रीज हो गई है 3,000 से, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है. तो लाइबिलिटी बढ़ गई है तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Loss. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 हम यहाँ लिख देंगे. बोलिए इतनी पोस्टिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन है? This much is clear to everyone properly, beta. So now balance it. Balance and calculate the profit. $15,000 balance is left. That 15,000 we are writing by profit. This much is clear. बट अब हम इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में नहीं बांट सकते, बिकॉज उनने आपको वो सेंटेंस दिया है ऑल्टर्ड वैल्यू इज नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट. तो अब चेंजेस मैं बता रही हूँ अब क्या चेंजेस होंगी. तो रेडी टू अंडरस्टैंड दी चेंजेस? तो पहली चीज समझ में आई, हमने प्रॉफिट को जब भी ये लाइन दी होगी तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे. तो हमारा रूल है, देखो सेंटेंस में क्या दिया है, ऑल्टर्ड वैल्यू को शो नहीं करना. तो हमें ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा. रीवैल्यूएशन प्रॉफिट रफ में लेंगे 15,000. अब इनने क्वेश्चन में आगे कहा है जर्नल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. तो जर्नल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो ऐड हो जाएगी. तो जर्नल रिजर्व लाइबिलिटी है, ये इसमें ऐड कर लेंगे. अगर क्वेश्चन में गुडविल दी होती तो गुडविल भी ऐड कर लेते, मगर गुडविल अभी 0 है. तो इन सबको प्लस करके आपका आंसर आ रहा है 90,000. तो ये 90,000 हमारा क्या कहलाएगा? नेट वैल्यू. पहला स्टेप समझ में आया? मैंने पहली वर्किंग नोट करी है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा. तो दिस वर्किंग नोट इज क्लियर व्हाट आई हैड डन नाउ. जब भी आपको कहेंगे ऑल्टर वैल्यू को बैलेंस शीट में शो नहीं करना, तो हम प्रॉफिट को प्लस कर रहे हैं. अगर लॉस होता तो लॉस माइनस कर देते. लाइबिलिटी है जो उनने क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि ये लाइबिलिटी भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हम लाइबिलिटी को भी इसमें प्लस कर लेंगे, जो जो लाइबिलिटी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. और अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दी होती तो वो भी प्लस कर लेते. और अगर कोई असेट का नाम कहते कि वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हम असेट को माइनस कर देते. तो हमारी नेट वैल्यू आ गई
फिर अब हम जो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं वो इस नेट वैल्यू के साथ ट्रीट करेंगे। नेट वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो से। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कितना आया है? 1/36। तो 1/36 कैंसिल करें, 9 1 9 4 4 1 4 2 4 5 2500 आ रहा है आपका कैंसिल करने पर। तो जर्नल एंट्री बनाएंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, और ये 2500 आ जाएगा। अब बताओ पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? No, ma'am. Okay. So now after this we have to make partners capital. So this much you have copied. So make it revaluation fast. I will rub, then I will be making partners capital. At least revaluation is made now. मैम Yes. मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे? नहीं बेटा, इसका ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को हम लोग ने कल ओल्ड रेशो में बांटा था, तो वो बस नहीं करेंगे। बाकी तो जैसा रीवैल्यूएशन बनाते हैं वैसे ही करेंगे। बस ये जो इसका डिविजिबल प्रॉफिट आया है, कल हमने उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया था, तो जब ये वाला सेंटेंस दिया होगा तो हम उसको ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे। बस ये चेंजेस हैं। यस मैम। Now see beta, we are going to make partners capital. As there were 3 partners, that means we have to make according to them. ठीक है, सबसे पहले हमें पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है जो बैलेंस शीट में दी है। तो बैलेंस शीट में कैपिटल दी है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। पहले इतना समझ में आया क्या करना है? बाकी अब हमें और कुछ भी नहीं लिखना है, बस हमने ये जो जर्नल एंट्री बनाई है, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी है। कल सिखाया था, फिर से एक बार समझो। P डेबिट है, दैट मीन्स P के डेबिट में लिखेंगे। इसके ऑपोजिट में क्या है? R, तो लिखेंगे 2R कैपिटल। R क्रेडिट है, तो R के क्रेडिट में लिखेंगे। इसके ऑपोजिट में कौन है? P, तो लिखेंगे बाय P कैपिटल अकाउंट। आया ये समझ में बेटा? Posting is clear, both the postings are clear. So here partners capital, how we had made? First we have written the partners capitals. So partners capital from the liability side we have written, and then we have passed a journal entry. So that journal entry we have passed. Under that journal entry, P is debited, that's why P debit side we have written, but opposite side R is written, so due to that we are writing 2R. Same way R is credited, so credit side of R we have written, and opposite of that P is mentioned, so particular we have written P. This much is clear? यस मैम। Okay. Now we have to calculate the balance. बस पार्टनर्स कैपिटल में इतना ही पोस्ट होगा। अब आप बैलेंस निकालो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो 4 लाख, 4 लाख में से 2500 माइनस हुआ तो कितना बचा? 3 लाख
87,500, 3 lakh, 3 lakh का 3 lakh, यहाँ 2 lakh 2,500, so here also 2 lakh 2,500. So now this much is also clear. Yes, ma'am. So now shall I rub and make balance sheet downstairs? अब इस सम में बैलेंस शीट बहुत ही यस बेटा Ma'am, it's 3,97,500. 397,500 यस. अगर ये वैरायटी का सम आएगा तो बैलेंस शीट इसमें बहुत इजी होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें कोई चेंजेस नहीं करनी रहती है. बस उनकी कैपिटल हम यहाँ भेज चुके हैं, इसलिए कैपिटल ये नहीं लिखेंगे. बाकी पूरी बैलेंस शीट वही की वही कॉपी कर दोगे, कोई चेंजेस नहीं करनी है. तो देखो मैं वही की वही लिख रही हूँ जो बैलेंस शीट दी है. आपको बैंक बैलेंस दिया है 40,000, तो एज इट इज लिख दिया मैंने. आपको डेटर्स लिखे हैं 2,10,000, तो एज इट इज डेटर्स लिख दिए. स्टॉक 3 लाख है, तो 3 लाख का 3 लाख लिख दिया. फर्नीचर 60,000 का 60,000 लिख दिया. प्लांट एंड मशीनरी वही की वही लिख दी. तो जब टोटल करोगे तो वही का वही आना है, क्योंकि हमने चेंजेस तो कुछ किए नहीं है. लायबिलिटी साइड में भी क्रेडिटर्स वही का वही लिख देंगे. आउटस्टैंडिंग भी वही की वही. जर्नल रिजर्व देखो हमने यहाँ नहीं बांटा, इसलिए यही का यही आएगा. बस हमने कैपिटल्स यहाँ भेज दिए हैं, तो कैपिटल्स हम ये वाली नहीं लिख सकते. कैपिटल्स हम इस लेजर के बैलेंस की लिखेंगे. तो 3,97,500, 3 lakh and 2,25,500 प्लस करो इन सबको, तो आपकी कितनी आ रही है 9 लाख. और फिर टोटल करो तो वही आ जाएगा 10,30,000. So this is the balance sheet we are making when this type of adjustment is given. That means balance sheet as it is we are going to copy. Only changes we are doing in capital, because we have made a capital account. So due to that, whatever new balance of capital is coming, that new balance of capital we are writing here. So now it's clear. Yes, miss. Yes, miss. Ma'am, Yes. ma'am, they have written they don't want to share anything, so why we are making revaluation account? Because they do not want to distribute anything, but they have given adjustment. So that adjustment is helping us to calculate profit and loss, and we have to apply that formula what just now I have given. If we are not making revaluation account, then how we are going to calculate that difference profit or loss is there? Because we have to use that formula. Due to that, we have made revaluation for using that adjustments even. Clear now? Yes, miss. Keep studying.